एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर जो बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, प्लांट किंगडम। इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो आज मेरे पास 15 क्वेश्चंस हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आपकी एल्गी हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, उनकी एग्जांपल्स आपको किस तरीके से याद करनी है ताकि आपको इजीली याद रहें वो। तो उसका निमोनिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट with our first question. The first question is, which of the following algae stores food as starch? स्टार्च की फॉर्म में कौन स्टोर करता है? सिंपल स्टार्च की बात हो रही है। सिंपल स्टार्च की फॉर्म में ब्राउन एल्गी करेगा नहीं। ब्राउन एल्गी किस फॉर्म में करता है हमारे पास? ये करता है हमारे पास लेमिनारिन की फॉर्म में, ठीक। रेड एल्गी किस फॉर्म में करता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी करता है हमारे पास नॉर्मल स्टार्च की फॉर्म में। और डायटम्स हमारे पास किस फॉर्म में करते हैं? ऑयल्स की फॉर्म में। तो द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। चलो, let's move on the second question. Elgin, a commercially valuable product, is obtained from. So एल्गिन हमें कहाँ से obtained होता है? एल्गिन होता क्या है? सबसे पहले एल्गिन जो है एक हाइड्रोकोलॉइड होता है, यानी कि थिकन जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है लेमिनारिन और सारगैसम में। So लेमिनारिन और सारगैसम आर द एग्जांपल्स ऑफ द ब्राउन एल्गी. So the right option will be the brown algae. Let's move on to the third question. The main plant body of the bryophyte is. So the bryophyte have a plant body that is gametophyte. ठीक है, they are the gametophyte dependent organisms. Now, fourth question. The sporophyte of the moss is. We have to tell about the moss. So basically the sporophyte of moss is partially dependent on the gametophyte. Why it is so? This is because the seta and capsule of the moss, seta and capsule of the moss, they obtain their nutrition from the gametophyte, but the capsule has some photosynthetic tissues also. So that is why it is known as partially dependent. Okay, let us move on to the fifth question. First, true vascular plants. What do you mean by vascular plants? Vascular plants are those plants which conduct water and food through xylem and phloem. Xylem and phloem. So, pteridophytes are the first true vascular plants. Now, the sixth question is, heart-shaped gametophyte of the ferns is called. So, the gametophyte is known as Prothallus. So, it is basically small and green in color, and it consists of Antheridia and Archegonia. Okay. The next question, seventh question, the seeds of the gymnosperm are. We have to tell them about the gymnosperms. Enclosed in a fruit? No. Naked? Not enclosed by the ovary? Yeah, this is the correct option. Covered by pericarp? No. Present inside the drupe? No. The right option is the B option. Now, eighth question, double fertilization is a characteristic feature of. सबसे सिंपल क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और किसी में जिम्नोस्पर्म्स में हमें क्या, सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स में क्या देखने को मिलती है? हमें सिंगल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। ओके, so let's move on to the ninth question. The ninth question is heterospory, that is microspores and the megaspores. They are seen in what? They are seen in Legionella and Salvinia. Yes, this is the right option. So what are the examples of homospore? So homospores are produced in case of Leca, wait a second, Leca, Funaria and Cara. Okay. Now let's move on to the 10th question. Alternation of generation refers to. Alternation of generations किसको बोलते हैं? Alternation between xylem and phloem? No, not at all. Alternation between sporophylls and leaves? No. Alternation between haploid and diploid phases? Yes, this is the correct option.
What is the fourth option? Alternation between gametes. No, this is also the wrong option. Now, question number 11. Amphibians are the amphibians of the plant kingdom. So the amphibians of the plant kingdom are bryophytes. Why these are called as amphibians of the plant kingdom? Because they live on land, but they need water for their reproduction, for their fertilization. Okay, let's move on to the 12th question. The first seed plants on the earth were. First seed plants कौन से थे अर्थ पे? So that were gymnosperms. Third option, C option, that is the gymnosperms. Gymnosperms were the first to bear naked seeds without fruit. Okay. Now we have 13th question. The main conducting tissues in the pteridophytes are. This is a similar question. As I told you that pteridophytes were the first that developed xylem and phloem. So the right option will be the C option. 14th question. Which of the following is microscopic and conical? मतलब जो colonies बनाता है, तो एक ही है जो colonies बनाता है, that is the volvox. Now 15th question. Floridian starch is a reserve food of, ये मैंने आपको पहले ही बताया, reserve food of the red algae. ठीक है. अब इसमें आपको, ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन. इसमें आपको मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, जो आपके एल्गी है ना, जैसे आप लोगों के जो नॉर्मल पैराग्राफ दिया हुआ है एल्गी के बारे में, उसमें भी हमें दिया हुआ है रेड एल्गी के बारे में कि जो क्लोरेला है और ये यूज़ की जाती है बाय द स्पेस ट्रैवलर्स. तो वो चीज़ आपको याद रखनी है. आइसक्रीम्स पे हम जो जेलीज यूज़ करते हैं वो ऑब्टेन होती है जेलिडियम और ग्रेसिलीरिया से. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें से. ठीक है. अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताना था कि हम एल्गी के एग्जाम्पल्स को कैसे याद करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रीन एल्गी के बारे में. ठीक है. ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स आप कैसे याद रखोगे? आपने XUV तो गाड़ी का नाम सुना होगा, है ना, बट इसमें आपको याद रखना है CSUV. ठीक है. XUV की जगह आपने क्या याद रखना है? CSUV. C से आपने दो याद रखने हैं, दो नाम याद रखने हैं. S से एक नाम होगा, U से एक नाम होगा, V से एक नाम होगा. तो C से हमारे पास क्या नाम हो जाएगा? C से हमारे पास हो जाता है कारा एंड क्लोमेडोमोनास. ठीक है. S से हमारे पास क्या हो जाता है? स्पाइरोगाइडा. U से क्या हो जाता है हमारे पास? यूलोथ्रिक्स. और V से क्या हो जाएगा हमारा? वॉलबॉक्स. क्लियर है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ब्राउन एल्गी के बारे में. ठीक है. ब्राउन एल्गी. सो ब्राउन एल्गी का आप एक निमोनिक याद कर सकते हैं. क्या निमोनिक है? लेजी स्टूडेंट्स फाइंड एवरी डिक्शनरी. क्या निमोनिक है? लेजी स्टूडेंट्स फाइंड एवरी डिक्शनरी. अब मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो इसीलिए. ठीक है. अगर मैं बात करूँ L से, तो L से आपके क्या आ जाएगा? लेमिनारियन आ जाएगा. ठीक है. S से आप स्टूडेंट से क्या आ जाएगा? S से सार्गेसम आ जाएगा. F से आप लोगों का क्या आ जाएगा? फ्यूकस आ जाएगा. E से क्या आ जाएगा? एक्टोकार्पस. और D से आपका क्या आ जाएगा? डिक्टियोटा. ठीक है. तो ये हो गया आपके ब्राउन एल्गी के. सो ग्रीन एल्गी आपने कैसे याद रखना है? CSUV से. और ब्राउन एल्गी का आपने कैसे याद रखना है? लेजी स्टूडेंट्स फाइंड एवरी डिक्शनरी. ठीक है. अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ. नेक्स्ट क्या रहेगा? रेड एल्गी का. सो रेड एल्गी का आप लोगों ने याद रखना है. तो रेड एल्गी का आपने याद रखना है P² एंड G². व्हाट इज P²? P² मतलब कि 2 P आएंगे और G² मतलब कि 2 G आएंगे. ठीक है. P² से आपका बन जाएगा पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा. पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा.
और जी से आपका आ जाएगा जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, सो ये आप लोगों के हो गए, मैंने तीनों एल्गीज का आपको बता दिया। ग्रीन एल्गी का आपने याद रखना है CSUV से, ब्राउन एल्गी का हो जाएगा लेजी, स्टूडेंट्स फाइंड एवरी डिक्शनरी, और रेड एल्गी का हो जाएगा आपके पास P² एंड G²। सो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप लोगों को सारे निमोनिक्स बता दिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इफ़ यू लाइक द वीडियो सो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के लेकर के आऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।